everyone, welcome back to my channel. तो आज का टॉपिक जो मैंने सोचा कि I should share with you all is how it is to be a content creator. Now, I am currently working as a content creator. I won't say on a very big level, but I have reached to a certain point जहाँ पे मैंने अपने कुछ experiences gain किए हैं. It will be helpful if you are somebody जो content creation as a profession सोच रहा है करने की, या फिर even if not as a profession, even if you are just curious about this field, even then I feel ये somewhere help करेगा आपको to know some insight. I have written some points in my little notebook. I got this from Miniso. Cute, right? So I have written कुछ points, negative points, कुछ positive that I feel are important to share, so that you know what it actually feels like when you are working as a content creator. So yeah, थोड़ा positive note पे start करनी चाहिए चीज़ें. So yeah, let's start with the pros. So सबसे पहला pro जो मेरे दिमाग में आया था, और I feel सबके when you hear the word influencer या content creator, तो सबके मन में पहला point तो यही आता है कि यार इसको कितने free products मिलते हैं, right? So my first point is you get lot of free products and services. When you are working as an influencer, तो you have this privilege कि आपको brands अपने products send करती हैं, आपको invites मिलते हैं to restaurants, cafes and clubs and and parties, events. आप बहुत सारी जगहों पे visit कर सकते हैं and you don't have to pay for that because वो brands आपके लिए आपको sponsor करती है, so that you mention them and people get to know about that. Then हमारा next point है you leave an impact or influence on your audience. So see, when you become a content creator, आपके पास एक certain number of followers होते हैं, आपके पास एक certain number of people होते हैं जो आपको देख रहे होते हैं, right? And you leave an impact on them. That's why they become your OG followers. I think ये एक बहुत काफ़ी satisfactory aspect है इस job का, that you can actually leave an impact on your audience. You can actually give them something that will be helpful and which can actually make their life better. And impact ज़रूरी नहीं है कि अच्छी बातों से ही हो, that today I'm speaking something good और वो आपको helpful हुआ. Impact could be anything, even in terms of outfit. ठीक है, if someone is sharing their way of dressing and you like that and you pick that for yourself, तो that is an impact, right? वो उस person ने आपके ऊपर impact leave किया, that's why you're following उसका dressing sense. So impact could be in any form. Next we have building a community. Let's say in future I decide to start a business for myself, और उस business के लिए मेरे पास I have a community जिनके साथ मैं share कर सकती हूँ कि listen, I have started this, why don't you try it out? So if you have number of people, number of followers with you, you have a community जो आपको support करेगी in any venture you start in your life. Next up we have personal growth. Oh my god, I can't stress कि ये कितना ज़्यादा important aspect है. When you are a content creator, आप ऐਵੇਂ ही कोई भी चीज़ इंटरनेट पे बोल के नहीं जाते हो, right? You, whenever you are giving some knowledge on internet, you have to do your own research on that. You watch so many podcasts. There are so many people, YouTubers जो इतने अच्छे podcast बनाते हैं. They're making podcasts related to history, geography and politics, and so much is on internet today. और वो ऐसे ही नहीं बन जाते, उसके पीछे there is so much of homework involved, there is so much of research involved जो वो लोग actually करते हैं. You meet people, you go visit places, you talk to them, it gives you a good boost to your personality. सबसे important point जो मुझे लगता है, मैं एक इस रीज़न की वजह से अट्रैक्ट हुई हूँ इस फील्ड के लिए, विच इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स दैट यू आर फ्री टू to do anything on internet.
यू आर नॉट डिपेंडेंट, आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो कि वो आपको प्लेटफॉर्म दे काम कर या आपको काम लाके दे. टुडे वॉट एवर आई फील, आई एम फ्री टू टॉक ऑन माई चैनल. और जो लोग मुझसे एग्री करेंगे वो लोग मेरा चैनल देखेंगे, जो लोग एग्री नहीं करेंगे वो नहीं देखेंगे, यू नो. सो इट्स लाइक दैट. यू कैन ओपनली एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड यू कैन ओपनली बी whatever and whoever you want to be. कोई आपको रोकेगा नहीं. there is no restrictions, nothing involved. done with the pros. अब आते हैं हम cons की साइड पे. ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट. तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो नेगेटिव तो होंगी डेफिनेटली. तो जो भी नेगेटिव मैंने फील किया है, जो भी नेगेटिव मैंने सोचे कि हो सकते हैं, वो आई एम गोना शेयर विद यू ऑल. सबसे पहला, कॉम्पिटिशन. ओके, यू नो इट्स सो हार्ड टू मेक एन एज जिससे आपको एक उस फील्ड में एक रिकग्निशन मिले. बहुत टफ है अपने आप को रिकग्नाइज कराना, अपने आप को एक एज देना विच यू नो विच सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर ऑल्सो इन द सेम फील्ड, हु आर डूइंग द सेम थिंग. ऐसा नहीं है कि आप वीडियो बनाना शुरू करो और नेक्स्ट डे आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर बन गए. मे बी एक आध रील आपकी वायरल हो जाए, यू नो, बट दैट डजंट मीन एनीथिंग. आज एक रील आपकी वायरल होगी, कल आपको लोग भूल जाएंगे क्योंकि कल किसी और की वायरल चल रही है. कंपटीशन इतना ज़्यादा है दैट इवन इफ़ यू गेट वायरल होने के बाद भी लोग भूल जाते हैं. इट इज़ सो क्विक. नेक्स्ट कॉन जो आई फील काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए जानना, विच इज़ द वर्कलोड. ठीक है, तो व्हेन वी आर वॉचिंग अ रील, 30 सेकेंड 40 सेकेंड की रील हम देखते हैं, स्वाइप कर देते हैं, राइट. वी आर लाइक कुछ भी कमेंट पास कर दिया, मतलब वी हैव समथिंग और दी अदर टू से अबाउट एनीथिंग वी आर वॉचिंग. लेकिन यू नो व्हाट गोज बिहाइंड मेकिंग दैट सिंगल रील, वो 30 सेकेंड की रील बनाने के लिए जो हार्डवर्क लगता है ना गाइज, यू हैव नो आइडिया. वॉट एवर level I'm working today, I'm speaking for myself, you know, I do everything by myself. I'm my own director, producer, actor, script writer, cameraman, lighting, and you know, hair, makeup, costume, every freaking thing which whatever is involved in making a video, वो सब मैं खुद से करती हूँ. It's a lot to manage. ठीक है, फिर वीडियो बनाने के बाद एडिटिंग करना एंड यू नो उसको ब्रांड से अप्रूवल दिलवाना. ब्रांड अप्रूव नहीं करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 80% ऑफ टाइम एट वन गो द ब्रांड डजंट अप्रूव योर वीडियो. उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, देन यू री एडिटेड, यू नो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर लाइक अ गुड 4-5 days. ऐसा मत सोचना कि 30 सेकेंड की वीडियो है, कितना ही टाइम जाता होगा, कपड़े पहन के खड़े हो जाते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स एक वीडियो बनाने के लिए देर इज़ सो मच ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी, एवरीथिंग इज़ इन्वॉल्व, यू नो. एंड या it's a tedious job, more than it looks. Next up we have pressure of creating new content each time. So you know, as I told you before, competition की वजह से at today's time it's so important कि आपका एक edge बने, you know, you have an edge as a content creator over the other creators, and उसके लिए you have to come up with new idea each time. तो वो pressure, you know, that pressure of creating something new each time, it's so much. मतलब मैं I have started my YouTube channel, एक वीडियो पोस्ट नहीं होती है कि मुझे नेक्स्ट डे से मेरा दिमाग घूमने लगता है दैट व्हाट विल आई पोस्ट इन द कमिंग वीक, हाउ विल आई शूट इट, वेयर विल आई शूट इट. और उसमें भी यू नो उसमें भी फिर यू हैव टू शो वेरिएबिलिटी. आई कांट जस्ट कीप पोस्टिंग एक ही टाइप के व्लॉग्स. आई हैव टू शो वेरिएशंस. मुझे न्यू टाइप की वीडियोज़ डालनी चाहिए. या फिर अगर मैं इंस्टाग्राम रील्स बना रही हूँ तो हाउ विल आई मेक इट, उसमें मैं क्या नया करूँ. देयर इज़ सो मच ऑफ थॉट प्रोसेस, यू नो, कि ऐसे करूँ वैसे करूँ. इतना सब कुछ दिमाग में चल रहा होता है दैट समटाइम्स यू नो पीपल कॉल इट क्रिएटिव ब्लॉकेज हो रहा है, दैट यू आर नॉट एबल टू थिंक क्रिएटिव आइडियाज़. इतना प्रेशर आ जाता है. देन फाइनली फेसिंग स्कैम्स एंड फ्रॉड्स. तो ये मैंने क्यों लिखा है, सी कॉन्टेंट क्रिएटर होना ज़रूरी नहीं है, स्कैम्स किसी के साथ भी होते हैं.
पर क्योंकि मेरे साथ कंटेंट क्रिएटर होने की वजह से स्कैम हुआ था, दैट्स वाई आई एडेड दिस पॉइंट. यू कीप वर्किंग विद न्यू पीपल, न्यू ब्रांड्स, तो यू नेवर नो कि कौन आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, स्कैम करके आपके दे विल नॉट पे यू बैक, they will block you or ghost on you. So this happened with me, that's why I am sharing. So there was this agency, I'm gonna take the name क्योंकि I don't know, maybe आपके साथ ऐसा हो जाए कभी. So this agency known as Free Scout, ठीक है, you can search it on Instagram. तो फ्री स्काउट नाम की एक एजेंसी थी जिन्होंने मुझे बोला था कि यू बाय दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम Amazon. एक ब्रांड के प्रोडक्ट से कुछ 3-4 प्रोडक्ट्स बाय करके Amazon रिव्यू लिखना था एंड दैट्स इट. एंड दे वर लाइक आफ्टर यू पुट द रिव्यू एंड सेंड टू अस वी विल रीइम्बर्स योर मनी. तो मैंने वो सब और मैं पर्सनली वो ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी, तो दैट्स वाई आई अग्रीड, राइट. तो मैंने वो किया और मैंने प्रोडक्ट्स ख़रीदे, रिव्यू डाला, उनको भेजा एंड देन दे गोस्टेड ऑन मी, दे ब्लॉक्ड मी, दे वर नॉट रिसीविंग माई कॉल्स. मैंने उनके इंस्टाग्राम पेज पे भी उनको मैसेज डाला था बट दे डिड नॉट रिस्पॉन्डेड. सो आई वॉज लाइक व्हाट टू डू नाउ. पैसे गए मेरे, ठीक है, वो तो अच्छा था दैट वो ब्रांड के प्रोडक्ट्स में यूज़ करती थी, तो वो प्रोडक्ट्स यूज़ में आ गए एंड माई मनी वॉज नॉट वेस्टेड. बट आई मीन आई डिड नॉट लाइक दैट. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे साथ एक कुछ ऐसा फ्रॉड टाइप हुआ. तो उसके बाद से मैंने ऐसे डील्स ही लेनी बंद कर दी है. टुडे आई डोंट टेक डील्स वेर एन आई हैव टू स्पेंड माई ओन मनी फर्स्ट एंड देन दे विल रीइम्बर्स द मनी. आई डोंट डू दैट बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि वो लोग मुझे देंगे, वापस नहीं देंगे, राइट. समटाइम्स ब्रांड्स डोंट पे यू आफ्टर यू पोस्ट. So I think it's very common, so you have to be really careful. So yeah, I think we are done with the pros and cons. I thought it would be helpful अगर कोई interested है insights जानने में. Don't forget to subscribe. I'm gonna see you in my next video. Bye.